Hi everyone, welcome back to part 2 of this lecture where we're talking about renal tubular reabsorption. So in the previous video, we spoke about reabsorption of sodium, glucose and amino acids. Now in this video, we're going to be primarily focused on chlorides, bicarbonate and water. Now chloride, bicarbonate और water इनकी reabsorption कैसे होती है उसके अलावा हाइड्रोजन जो प्रोटॉन आयंस है इनकी secretion होती है ठीक है so we're going to be talking about them. But quick recall of the previous lecture, जिसमें I told you we have a basolateral membrane and we have a luminal surface. Luminal surface में you have this brush border which increases the surface area. अब जो basolateral surface उसके अपने carrier proteins जो transporters हैं और हमारा जो brush border है जो luminal surface है उसके अपने carrier proteins और transporters हैं. And then we have these tight junctions which not only keep these cells together but it also ensures कि यहाँ वाले proteins float करते करते दूसरी surface पर मत चले जाएं. Very important. Basolateral surface में we have this very important channel which is sodium ATPase, sodium potassium ATPase pump जो कि driving force है which is the entire horsepower of your entire kidney की ये पूरा proximal convoluted tubule structure. Now what happens is that it pumps free sodium out and 2 potassium in. What does this do? This makes this region of intercellular region sodium poor. ये sodium poor हो जाता है और पोटेशियम अब अंदर आए हैं लेकिन there's one more thing as well which is potassium leaky channels होते हैं जो कि पोटेशियम को बाहर लेकर जाते हैं because पोटेशियम अंदर ज़्यादा तो high to low concentration तो basically facilitated diffusion होती है through these potassium leaky channels and potassium goes out. So overall, this cell also became electronegative. तो electronegative भी हो गया, sodium poor भी हो गया. Now both of these अब दो gradients हैं जो कि sodium को favor करेंगे कि वो अंदर आना चाहिए, वो इस cell के अंदर आना चाहिए. अब sodium यहाँ concentration में ज़्यादा है, right? तो both of these factors are going to favor sodium to come inside. अब होगा क्या कि since this is sodium poor under intercellularly that's sodium poor और बाहर sodium ज़्यादा है तो high concentration to low concentration. So it's going to it's going to be transported along the concentration gradient और ये facilitated diffusion होगी because we have sodium co-transporter proteins here. राइट और दूसरा मतलब इसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी फॉलो किया दूसरा अपने चार्ज ग्रेडियंट को भी फॉलो किया जो कि केमिकल ग्रेडियंट है चार्ज ग्रेडियंट जिसमें क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम पॉजिटिव है सो इट विल बी रेडीली वांटिंग टू कम इन ठीक है इसके अलावा ये हैव को ट्रांसपोर्टर्स अब सोडियम तो अंदर आ रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है लेकिन साथ साथ ग्लूकोज का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है और अमीनो एसिड की भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है ठीक है और ये कौन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट आई टेल यू इन अ सेकंड लेकिन उससे पहले ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ATPase pump है ना तो you have two types of active transport primary and secondary primary में क्या होता है then and there ATP is broken down and it is utilized वहीं ATP present होता है जो drive करता है इस reaction को या उस ट्रांसपोर्ट को और सेकेंडरी में कि ये दूसरे कहीं और जो ग्रेडियंट प्रेजेंट है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो ये तो एटीपेस है राइट इसके पास ये खुद ही एटीपी को ब्रेक डाउन करता है तो दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो बेसोलेटरल सरफेस में ल्यूमिनल सरफेस कौन सी रीजन पे ज्यादा अक्यूमुलेटेड होंगे सो द आंसर इज के बेसोलेटरल सरफेस पे यहाँ ज्यादा अक्यूमुलेटेड होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है क्योंकि यहाँ ये एटीपी चाहिए होता है ज्यादा इसके अलावा यहाँ ये जो ग्लूकोज यहाँ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दिस इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड आपने किस तरह सोचना है कि इनिशियली ग्लूकोज ज्यादा होता है लेकिन वो सारा अंदर चले जाता है लेकिन फिर बाद में क्या थोड़ा ग्लूकोज रहता है और सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन देयर यू गॉट योर फर्स्ट आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसके बाद अपना एटीपी नहीं होता दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी which is coming from the flow of sodium from outside to inside तो सोडियम अंदर आ रहा है ना तो उसकी एनर्जी से ये दूसरा वाला रिएक्शन it's being carried forward और ये सोडियम क्यों अंदर आ रहा है because of the energy from here तो टेक्निकली अगर उबेन एक काफी टॉक्सिक सब्सटेंस है अगर उसको लगाया जाए तो वो उबेन बेसिकली अगर वो क्या करता है इसको ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से ग्लूकोज भी इवेंचुअली नहीं आएगा एंड ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड क्लोराइड दे विल बी एक्सेसिवली इन यूरिन तो इससे प्रूव हो रहा है कि दिस इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है और ये क्या है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अलावा आई टोल्ड यू यहाँ पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं सो दैट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है ग्लूकोज अब अंदर जो आ गया उसमें बाहर भी तो जाना है तो यहाँ यू हैव ग्लूड व्हिच इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ऑब्वियसली सिंपल तो है नहीं अगर सिंपल होती तो चैनल ही ना होता ना इधर इसके अलावा अमीनो एसिड के भी ट्रांसपोर्टर्स पड़े हैं तो दैट्स आल्सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सो यू गेटिंग ऑल योर आंसर्स नाउ मूविंग फॉरवर्ड to the part of this lecture इसमें हम बात कर रहे हैं water की first of all water can either transfer paracellularly which is between the cells or transcellularly transcellularly भी जा सकता है through the
सेल्स और पैरासेल्युलरली। ठीक है। अब होता क्या है कि उससे भी पहले लेट्स क्लैरिफाई क्लोराइड। क्लोराइड की भी बिल्कुल वही सिचुएशन है जो ऊपर ये इस को ट्रांसपोर्टर की थी ना, लेकिन हमारा जो इनिशियल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, दैट्स मोर फोकस्ड ऑन अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज बिकॉज दीज आर मेजरली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू इंश्योर कि 100% ऑफ देम आर रीअपटेकन। तो 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड वो इनिशियली ही दे रीअपटेकन। अब क्लोराइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको लेटर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल इज गोइंग टू टैकल विद। तो क्लोराइड उसी तरह सोडियम को ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, वो तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि क्लोराइड बाहर कम है और अंदर इवेंचुअली अंदर ज्यादा क्यूमुलेट हो जाते हैं। तो फिर और उसके बाद वाई इज सेकेंडरी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है। उसके अलावा इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि अच्छा क्लोराइड अंदर आ गया, राइट। अब दूसरी चीज, क्लोराइड ने इवेंचुअली वहां से बाहर जाना है तो वहां क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स होंगे, जाके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। ठीक है, लेकिन वो तो खैर बात की बात है। उससे पहले ये क्लोराइड के अंदर आने का एक तरीका, दिस इज फर्स्ट मेथड, बट देयर थ्री वेज इन विच क्लोराइड मूवमेंट हैपेंस। द सेकंड इज कि उसमें मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से वाटर अंदर आएगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट ड्रैग। एंड व्हाई इज दिस सॉल्वेंट ड्रैग हैपनिंग? बिकॉज आई टोल्ड यू ग्लूकोज आता है ऊपर से, यहाँ ग्लूट्स एंड ग्लूकोज भी इंटरस्टिशियम में आ गया, देन अमीनो एसिड भी इंटरस्टिशियम में आ गया, देन सोडियम भी पंप हो रहा है इधर, तो सोडियम भी इधर है, क्लोराइड भी इंटरस्टिशियम में आ गया। सो ऑल ऑफ these solutes, यहाँ osmolarity is very high, so there are a lot of solutes concentrated. So water sees that and obviously it wants to come in. So water will be dragged in. This is called solvent drag. Okay, this is solvent drag जिसमें water is being carried in. Now what happens is that chloride is the solvent drag के साथ it's also dragged in. So this is the second mechanism or of chloride movement. And what is the third mechanism? Third mechanism ये है कि वाटर सारा अंदर चला गया, अब फ्लूइड कंटेंट कम हो गया, लेकिन क्लोराइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है अंदर। ठीक है, लेकिन फ्लूइड कंटेंट आपका लिजिट हाफ हो गया है। अब क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई है इधर और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो है, सो बेसिकली डिफ्यूजन होगी। सो दिस वुड बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह सकते हैं आप। ठीक है, एंड दिस इज द रिटन टेक्स्ट, इसको आप देख सकते हैं जहां मैंने क्लोराइड की मूवमेंट का मैकेनिज्म लिखा है। को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इन द लेटर पार्ट, नॉट लेटरल पार्ट, इन द लेटर पार्ट, ठीक है, ऑफ द प्रॉक्सिमल कम्युनिटी। फिर सॉल्वेंट ड्रैग है और फिर क्लोराइड concentration in tubule अब increase हो गया because water diffuse हो गया है, तो basically अब chloride will be transported from high concentration to low, and this is you could say facilitated diffusion। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये बात कर ली क्लोराइड की, अब वाटर का भी हमने क्लेरिफाई कर लिया कि वो भी इवेंचुअली वाटर ने भी अंदर ड्रैग होना ही है, अंदर जाना है। ठीक है, अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटॉन्स पर। अब प्रोटॉन सिक्रीशन होगी, प्रोटॉन की क्या होगी? सिक्रीशन। अगर ये आपका ल्यूमेन और ये सेल है तो प्रोटॉन की सिक्रीशन होगी। यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से हमारे पास बाइकार्बोनेट आ रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, ये भी मैं जो बातें बता रही हूँ देर दीज आर इंपॉर्टेंट कि बाइकार्बोनेट इधर से ऊपर से आ रहा है फिल्ट्रेट में, और यहाँ से जो सिक्रीट होगा वो पोटाशियम होगा। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे ब्लड का पीएच है 7.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल रहना, वरना पर्सन कैन ऑल्सो आई मीन इफ देयर आर फ्लक्चुएशंस इन दिस इट कैन बी फेटल। तो bicarbonate is what keeps the blood pH 7.4, so it's very important to have bicarbonate। लेकिन bicarbonate हमारे बॉडी में they're always under threat। why are they always under threat? Because of because of protons, because of acid। और हमारी जो बॉडी है it's naturally acid producing machine, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा acid produce कर रही होती है, तो naturally जो बाइकार्बोनेट है वो हर वक्त अंडर थ्रेट होता है। Now it's our body's job to ensure that there is something that is